Hello. Hello, students. And good morning, everyone. So, I hope you all of are well again and welcome back in our class. I am Sumitra ma'am from Universal Public School, Avrat Shahajani. And today we are going to discuss about the new story from our subject English, and in that, for our fourth standard there is a new story for our study, and the chapter or lesson name is Merry Legs. So students, we are going to learn today a new most interesting story, and that story's name is Merry Legs. Merry Legs is a small pony. It means it is a name of a small pony. एक छोटे घोड़े का, हॉर्स का यह नेम है मेरी लेग्स. And the story Merry Legs is taken from the novel Black Beauty, and the writer or author of this story is Anna Sewell. Who is the writer of this story? Anna Sewell. She wrote this book or novel Black Beauty in 1877. Okay. Then see again here, this is the author or writer Anna Sewell, which you are watching in this picture. Okay, she wrote this story in the book of Black Beauty, and this is taken from this book for our study. What is Merry Legs? See here, the autobiography of a horse is an 1877 novel by the English author Anna Sewell. Okay, ये क्या है? मेरी लेग्स नामक यह जो स्टोरी है, एना स्वेल यह इस स्टोरी का या बुक की लेखिका है, जिन्होंने अपने ब्लैक ब्यूटी उपन्यास से यह स्टोरी ली है या लिखी है. तो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में अर्थात मेरी लेग्स इस स्टोरी में या फिर ब्लैक ब्यूटी नॉवेल में उन्होंने क्या नरेट किया है? तो एनिमल की, प्राणियों की आत्मकथा जिसे हम कहते हैं. ओके, प्राणियों की आत्मकथा उन्हीं के वर्ड्स में, शब्दों में यहाँ पर उन्होंने लिखी है, सुनाई दी है. ओके, तो चलिए आज हम देखते हैं इस मेरी लेग्स के थ्रू किस प्रकार से लेखिका ने अपने एनिमल्स के बारे में विचारों तथा गुणधर्मों को बता दिया है. ठीक है, इट मीन्स मेरी लेग्स इज अ jolly fat pony who is a favorite of the writer. Okay, and all the children also. It means the most special thing about the book is writer loves animals, all the animals, especially horses. Okay, and that's why she told us, or she gave us from this story,
kindness, sympathy, and respect is also necessary with the animals also. Okay. The story is narrated by Black Beauty, a horse who lived in Britwick Park, owned by the kind Mr. Gordon. Black Beauty was looked after by John, and the groom and the James are the stable boy. अर्थात इस ब्लैक ब्यूटी के बारे में यहाँ पर बताते हुए कहते हैं कि यह गार्डन में रहने वाला एक हॉर्स है एंड उसी के बारे में यह स्टोरी कथन की गई है। उसे ही यह ब्लैक ब्यूटी कहा गया है, जिसके स्टेबल बॉय ग्रोम्स एंड जेम्स थे। बट फ्रॉम दिस नॉवेल वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे द स्टोरी अबाउट द मेरी लेग्स। Then who is this Merry Legs, or what happened with him? We will see in our chapter. Students, many a time we do not think of the inconveniences of our pets and the animals around us. आपको पता है कि हम जो भी अपने घरों में पेट्स पालते हैं, जो भी पेट्स एनिमल्स हम संभालते हैं, रखते हैं, क्या उनके बारे में कभी हमने सोचा है? हाँ, क्या उनके लिए अपने मन में कभी दया आई है? उनके प्रति हमने कुछ ऐसा सोचा है कि चलो बाबा, हमारे जैसे उन्हें भी तकलीफ़ें होती है, हमारे जैसे उन्हें भी उनका मन है, उनकी इच्छाएं रहती हैं, हमें भी उनकी फीलिंग्स की कदर करनी चाहिए। इस प्रकार के कोई किसी ने सोचा है? This lesson teaches us that even animals get tired like us. एनिमल भी तो अपने जैसे, मतलब मनुष्यों के जैसे, कभी कभी ज़्यादा काम हो जाता है तो वह भी थक जाते हैं। So we should be considerate towards their feelings. तो हमें क्या करना चाहिए कि उनकी फीलिंग्स की कदर करना चाहिए। उन्हें भी भावनाएं हैं, उन्हें भी फीलिंग्स रहती है, जिन्हें हम महसूस करके उन्हें समझ लेना चाहिए। ओके, एंड उनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। इन द लिसनिंग एक्टिविटी यू विल गेट टू नो हाउ यू कैन ट्रीट योर पेट्स एट होम। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं इस स्टोरी के द्वारा एंड अपने आप में भी कि किस प्रकार से हम अपने पेट्स को ट्रीट करते हैं, है ना, किस प्रकार से व्यवहार उनके साथ करते हैं। एंड यहाँ पर लेखिका ने क्या करने को कहा है, यह सभी कंपेराइज करके आज हमें ये लेसन सीखना है। एंड वी विल टेक अ मैसेज और lesson from this lesson that even animals get tired like us and so we should be considerate towards their feelings. तो हमें उनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए, उन्हें रेस्पेक्ट देना चाहिए, उन्हें उन पर दया, प्यार आदि चीज़ों का बौछार करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इस लेखिका ने, एना स्वेल ने, किस प्रकार से पिछले ज़माने में या पुराने ज़माने में कहो, एनिमल्स का यूज़ किया जाता था, उन पर अत्याचार किए जाते थे, उनसे ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता था, बिहेव नहीं किया जाता था उनके साथ, उनसे अधिकाधिक काम करके लिया जाता था एंड उन्हें टॉर्चर भी किया जाता था। तो किस प्रकार से उनके मालिकों ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया, किस प्रकार से उनकी ऐसी कोई प्रसंग, घटनाएं याद है जिन्हें उन्होंने बहुत सी तकलीफ पाई हो। इस सभी चीज़ों का चित्रण यहाँ पर एना स्वेल ने अपने नॉवेल ब्लैक ब्यूटी के ज़रिए, मेरी लेग्स आदि स्टोरियों के ज़रिए करने की कोशिश की है। एंड उन्होंने यह भी एक संदेशा दिया है लोगों के लिए कि हमें एनिमल्स की देखभाल करनी चाहिए, उनकी फीलिंग्स को समझना है एंड उन्हें भी सब कुछ दया, प्यार
भावना होती है एंड इन भावनाओं की कदर हमें करनी है एंड उन पर कोई अत्याचार नहीं करना है. ओके, सो लेट अस सी what happened with them in the ancient time. See, you are looking this picture. Yeah, this is the van with horse. यह जो वैन आप देख रहे हो यहाँ पर, ये पुराने ज़माने का वैन है. इट मीन्स जब एना स्वेल का टाइम था, उन्होंने ये नॉवेल कब लिखा? 1877 में. तो उस टाइम आज जैसे व्हीकल्स है कम्युनिकेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आने जाने के लिए, तो इस प्रकार से उस ज़माने में कोई व्हीकल्स नहीं थे. सो उन दिनों अधिकाधिक प्रमाण में हॉर्स को यूज़ किया जाता था फॉर द राइडिंग, फॉर द ट्रैवलिंग और फॉर एनी अदर वर्क. तो इस प्रकार से कई सारे कामों को घोड़ों को ही यूज़ किया करता था. तो उनका काम ज़्यादा बढ़ता था, है ना. बच्चों को अगर राइडिंग करना है, एक जगह से दूसरी जगह लॉन्ग जाना है, किसी को फील्ड पे जाना है, किसी को विलेज जाना है, किसी को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो भी हॉर्स का यूज़ किया जाता था. एंड उस टाइम मैक्सिमम लोगों के पास हॉर्स पेट्स के रूप में रहते थे एंड उनको ज़्यादा काम भी लगाया जाता था एंड उनके कुछ बैड बिहेव या बैड ट्रीट भी की जाती थी. तो यह नहीं होना चाहिए. यही उस टाइम एना स्वेल ने अपने नॉवेल से बता दिया है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है. एंड इट इज़ सो वेल एंड गुड स्टूडेंट्स. ओके, लेट अस सी फ्रॉम दिस चैप्टर हाउ her thoughts are narrate in this story. See, you are seeing this horse riding and the one more picture here, that is the boy is sat on the horse. इस प्रकार से हॉर्स राइडिंग करने के लिए भी हॉर्स का यूज़ किया जाता था पहले ज़माने में. So students, first of all, going to learn our story Merry Legs, we have to study some hard words about the chapter. See, the hard words are here. First hard word is vikar. V-I-C-A-R. Vikar means priest. Priest means पुजारी या कादरी जिसे हम कहते हैं. Orchard. O-R-C-H-A-R-D. Orchard means a piece of land where fruit trees are grown. ऐसा एक ज़मीन का हिस्सा रहता है जहाँ पे फलों के झाड़ी ग्रो हो जाती हैं, जिसे हम फल बाग कहते हैं. Paddock. P-A-D-D-O-C-K. Paddock means stable or a small field where animals are kept, especially horses. जहाँ पर हॉर्सेस को रखा जाता है या केप्ट पाला जाता है, उसे स्टेबल या तबेला हम कहते हैं. ठीक है. पोनी. पोनी मीन्स हॉर्सलिंग. हॉर्सलिंग मीन्स एक छोटा घोड़ा. रग. R-O-G-U-E. रग मीन्स डिसऑनेस्ट या नॉटी जिसे हम कहते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति वाला या खोड़कर वृत्ति वाला जिसे हम कहते हैं. पीच्ड. P-I-T-C-H-E-D. पीच्ड मीन्स अ थ्रो, गिरा देना, फेंक देना, उठा के पटक देना. ऑफेंड. O-F-F-E-N-E-D. ऑफेंड मीन्स टू हर्ट द फीलिंग्स ऑफ, टू मेक एंग्री. और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या फिर किसी को गुस्सा दिलाना, उसे हम कहते हैं नाराज़ कर देना, ठेस पहुंचाना. किसी का अपमान करना, उसे कहते हैं ऑफेंड. प्रीचेंट. P-R-E-A-C-H-I-N-E-D है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है. टू गिव एडवाइस. प्रीचेंट मीन्स टू गिव एडवाइस मीन्स सलाह देना, जिसे हम कहते हैं.
Mane, M-A-N-E, mane means the long thick hair that grows on the neck of horses. आयाल या याल जिसे हम कहते हैं, जैसे कि आपको पता होगा घोड़े के नेक पे लॉन्ग हेयर्स रहते हैं, है ना, एंड वो थिक भी रहते हैं, तो उसे हम आयाल कहते हैं। जैसे कि लायन को भी रहते हैं, लायन के नेक को भी रहते हैं ऊपर से पूरी तरह से ऑल साइड से थिक हेयर्स रहते हैं, उसे हम आयाल कहते हैं। आए समझ में स्टूडेंट्स? Then let us go ahead and now we'll start our chapter line by line with the explanation. So for kind your information, just you see in your textbook on the page number 53 it is, I think. Yeah, 53. Okay. See, Mr. Bloomfield, the vicar, had a large family of boys and girls. Sometimes they used to come and play with Miss Jessie and Flora. यहाँ पर मिस्टर ब्लूमफील्ड एक नाम का मेन कैरेक्टर है, एंड ही इज अ विकार। विकार मीन्स पुजारी, जैसे कि कादरी हमने अभी देखा हार्ड वर्ड्स में, प्रीस्ट। हैड अ लार्ज फैमिली ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो उनके पास मतलब उनकी जो फैमिली थी वह कैसी थी? बड़ी थी, विद द मेनी बॉयज एंड गर्ल्स, कई सारे बच्चे एंड गर्ल्स, बॉयज लड़के एंड लड़कियां उनके फैमिली में थे। समटाइम्स दे यूज टू कम एंड प्ले विथ मिस जेस एंड फ्लोरा, कभी कभी वह फील्ड पे आया करते थे एंड मिस जेसी एंड फ्लोरा के साथ खेला भी करते थे। वन ऑफ द गर्ल्स वॉज एज ओल्ड एज मिस जेसी, एक जो गर्ल थी उनमें से वह कैसी थी? मिस जेसी से ओल्ड थी, बड़ी थी। टू ऑफ द बॉयज वेर ओल्डर, एंड दो लड़के भी मिस जेसी से बड़े थे। एंड देयर वेर सेवरल लिटिल बॉयज, एंड कई सारे लिटिल बॉयज वहाँ पे थे, मतलब उनके फैमिली में थे। एंड इन सभी के बीच कौन था? तो मिस जेसी। When they came there was plenty of work for Merrylegs, जब वह सभी, यह जो मिस जेसी, उसके 2 एल्डर्स ब्रदर्स, 2 1 ओल्ड गर्ल, ये सभी लोग जब आते थे ना फैमिली से, छोटे छोटे लड़के लड़कियां, तो राइड करने के लिए अगर चलने लगे तो देखो इन सभी को राइड करवाना बोले तो एक के बाद एक करवाना बोले तो कितनी चक्कर हो जाएंगी घोड़ी की, कितना काम लगेगा उसको, है ना। सपोज अगर इन सभी को राइडिंग करवाना है तो मैक्सिमम 1 या 2 को बिठा के लेकर वह कितनी बार घूमेगा। तो ऐसे व्हेन दे केम देयर वाज प्लेंटी ऑफ वर्क फॉर मेरीलेग्स, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि बाबा पहले ज़माने में कोई व्हीकल्स नहीं थे, तो घूमने की जो भी इच्छाएं रहती थी, राइडिंग करने की या सैर करने का अगर मन करता है बच्चों का, तो हमें घोड़े पे ही ले जाना पड़ता था। तो उस टाइम यह ब्लूमफील्ड वगैरह अपने काम सभी हॉर्स से किया करते थे, राइडिंग को भी बच्चों को हॉर्स पे ही ले जाया करते थे। तो इस प्रकार से मेरीलेग्स का काम बढ़ जाता था, बहुत सारा काम का लोड उस पर आ जाता था। मेरीलेग्स for nothing pleased them so much as getting on him by turns and riding him all about the orchard and the home paddock, and this they would do by the hour together, and nothing pleased them so much as getting on him, अगर उसे कितना भी काम लगे, कितना भी हैरान क्यों ना होता हो, वह कुछ कहता नहीं था। उनको उसे जो काम मिलता था वह करना ही पड़ता था। एंड उनको वह राइडिंग करवाने कहाँ पर ले जाता था? तो ऑर्चर्ड में वगैरह, फल बागों में लेके जाता था। तो उन्हें घुमा के राइडिंग करके फिर से उसे कहाँ पर रखा जाता था, मतलब बांध दिया जाता था। तो उसका होम, जो पैडक जिसे हम कहते हैं, स्टेबल, उस स्टेबल में हॉर्स को
बांध दिया जाता था। एंड दिस दे वुड डू दे द आवर टुगेदर। एंड यह जो काम था ना, इस प्रकार से वह कई घंटे एक साथ करवा लेते थे। किससे? मेरी लेग्स से। ऑर्चर्ड मीन्स अ पीस ऑफ लैंड वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन। एंड पैडक इट इज़ अ स्मॉल फील्ड वेयर एनिमल्स आर केप्ट, स्पेशली हॉर्सेस, जहाँ पर हॉर्सेस को रखा जाता है, ऐसा छोटा सा प्लेस जिसे हम स्टेबल कहते हैं। वन आफ्टरनून ही हैड बीन आउट विथ देम अ लॉन्ग टाइम। एक दिन क्या हो जाता है कि यह सभी जो बच्चे हैं, इन सभी को लेके यह मेरी लेग्स लॉन्ग टाइम कहीं दूर चले जाते हैं। एंड व्हेन जेम्स ब्रॉट हिम इन एंड पुट ऑन हिज हेल्टर ही सेड, देयर यू रग, माइंड हाउ यू बिहेव योरसेल्फ। ओके, रग मीन्स नॉटी, डिसऑनेस्ट, दुष्ट जिसे हम कहते हैं। There you rock, mind how you behave yourself, or we shall get into trouble. Okay, तो when James brought him, जब जेम्स ने उसे लाया, put on his halter, he said, and उसके एक सर पे ऐसा एक छड़ी लगा के कहता है कि there you rock, mind how you behave yourself, और we shall get into trouble। तो वह कहता है उन बच्चों से कि क्या कर रहे हो आप ये, कितना दुष्ट हो गए हो, कैसे सोचते हो, कितना बिहेव बुरा बर्ताव कर रहे हैं उसके साथ। माइंड हाउ यू बिहेव योरसेल्फ, क्या तुम्हें पता है तुम कितना टाइम यह कर रहे हो उसके साथ। और वी शैल गेट इनटू ट्रबल, और अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो हम मुश्किल में आ जाएंगे एक दिन। ओके, व्हाट हैव यू बीन डूइंग मेरी लेग्स। तो मेरी लेग्स क्या करता है, उन्हीं से पूछ लेता है, उन बच्चों से। व्हाट हैव यू बीन डूइंग मेरी लेग्स, सॉरी, व्हाट हैव यू बीन डूइंग मेरी लेग्स, आई आस्क्ड। तो इन्होंने पूछा, किसने? जेम्स ने पूछा कि तुम मेरी लेग्स क्या कर रहे हो। ओह सेड ही, तो तुमने क्या किया, ऐसा पूछने के बाद वह कहता है ओह सेड ही, तो उसने कहा, किसने? मेरी लेग्स ने। टॉसिंग हिज लिटल हेड, उसका जो छोटा सा सर है वह हिलाते हुए कहता है, आई हैव ओनली बीन गिविंग दोज यंग पीपल अ लेसन। ओके, मैं उन यंग पीपल को, मतलब जो भी छोटे लड़के हैं ना, उनको एक लेसन देना चाहता हूँ, मतलब उनको अद्दल गड़ाना चाहता हूँ, जैसे कहता है, एक धड़ा सिखाना चाहता हूँ। आया समझ में? They did not know when they had had enough, nor when I had had enough. So I just pitched them off backward. That was the only thing they could understand. जो भी बच्चे मुझे सताते हैं, परेशान करते हैं, घंटों तक घुमाते रहते हैं, उनके लिए मैं बस एक छोटी सी सबक सिखाना चाहता हूँ, और कुछ नहीं। ऐसा वह मेरी लेग्स कहता है। क्यों? तो उन्हें पता नहीं है वह कि वह कितना देर मुझे घुमा रहे हैं, कितना कष्ट मुझसे करवा रहे हैं। एंड नॉर व्हेन आई हैड हैड इनफ, एंड अगर मुझे बस भी होता है तो भी वह मुझे नहीं समझ पाते हैं, मेरी फीलिंग्स वह नहीं समझ पाते हैं। क्या मैं थक नहीं जाता हूँ? क्या मुझे थकान नहीं आती है? मैं थक जाता हूँ तो भी वह मुझे घसीटते हुए कितनों घंटों तक चलाते रहते हैं। एंड इन सभी चीज़ों के लिए उन्हें याद आए, उन्हें थोड़ा सा मेरी तरफ सोचने की भी आदत पड़े, इसीलिए मैं उन्हें थोड़ा सा सबक सिखाना चाहता हूँ, ऐसा मेरी लेग्स कहता है। जब वह जेम्स घोड़े को यहाँ पर लाता है एंड पूछता है कि तू क्या दुष्ट है क्या, माइंड योर सेल्फ, अपने आप को संभालो, क्या कर रहे हो, इस प्रकार से अगर बर्ताव करते हो तो तुम मुश्किल में आ सकते हो। ऐसा कहने के बाद मेरी लेग्स जेम्स को कह देती है कि बाबा मैंने कुछ नहीं किया, बस बच्चों को थोड़ी सी सबक सिखाना चाहा है। What said I? You threw the children of what? Said I. तो इन्होंने कहा, किसने? ओनर ने। तो मैंने कहा क्या? You threw the children of,
तुमने बच्चों को गिरा दिया, फेंक दिया, जमीन पर पटका दिया. I thought you did know better than that. Did you throw Miss Jessie or Miss Flora? तो इनको एक प्रश्न मन में उभर जाता है कि क्या तुमने बच्चों को सबक सिखाने के लिए नीचे ज़मीन पर गिरा दिया? मुझे लगता था गिराने की जगह तुम उनके साथ और कुछ भी तो कर सकते थे ना. उन्हें अगर सबक सिखाना है तो और कुछ उन्हें सज़ा देते, चाहे फिर डराते, घुमाते, थोड़ा स्पीड बढ़ा के उनको डरवाते, भागते, इस प्रकार से कुछ भी कर जाते. थोड़ा सा उदक के फुदक के चिल्लाते तो भी वह डर जाते. नीचे पटक देने की ज़रूरत नहीं थी, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, ऐसा वह कहते हैं. एंड डिड यू थ्रो मिस जेसी और मिस फ्लोरा? क्या तुमने मिस जेसी एंड फ्लोरा को भी फेंक दिया? देन ही लुक्ड वेरी मच ऑफेंड एंड सेड. बहुत ही अपमानपूर्वक वह देखता है एंड कहता है, ऑफ कोर्स नॉट. मेरी लेग्स का अपमान हो जाता है ना, तो नाराज हो जाता है वह, मतलब उसको ठेंच पहुंच जाती है. तो वह कहता है, ओह ऑफ कोर्स नॉट, आई वुड नॉट डू सच अ थिंग फॉर द बेस्ट ओट्स दैट एवर कम इनटू द स्टेबल. नो नो, मैंने ऐसा कभी नहीं किया, नहीं करूँगा. क्यों? तो इस प्रकार की कोई हरकत उनके साथ नहीं करूँगा जो हमेशा मेरे पास आते हैं, स्टेबल में आते हैं. कौन? द बेस्ट ओट्स. बेस्ट ओट्स मीन्स वह उनके जो बेस्ट फ्रेंड के जैसे बेस्ट ओट्स यहाँ पर बच्चों के बारे में कहा गया है फ्रेज. तो मेरी लेग्स कहता है कि वो मेरे बेस्ट ओट्स है, उन्हें मैं कैसा करूँगा, उन्हें उनके साथ ऐसा कुछ नहीं किया है, वो तो हमेशा मेरे साथ रहते, खेलते, खेलने वाले हैं. वाई I am as careful of our young ladies as the master could be, and as for the little ones, it is who teach them to write. क्यों? I am as careful of our young ladies. क्यों? तो मैं अपने यंग लेडी जो है मिस फ्लोरा एंड जेसी, उनकी बहुत केयर करता हूँ. एज द मास्टर कुड बी, जिस प्रकार से मेरी मास्टर केयर करते हैं, जिस प्रकार से मेरा ओनर, मेरा मालिक मेरी केयर करता है, मेरी देखभाल करता है, मुझे संभालता है, उसी प्रकार से मैं भी मिस जेसी एंड मिस फ्लोरा की केयर करता हूँ. एंड एज फॉर द लिटल वंस, इट इज़ आई हु टीच देम टू राइट. एंड वह ये छोटी लड़कियां नहीं हैं जिनके बारे में मैं बोल रहा हूँ या कह रहा हूँ, जिन्हें मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ. मैं तो उन्हें राइड करने के लिए टीच करता हूँ, राइडिंग करना तो हूँ. When they seem frightened or a little unsteady on my back, I go as smooth and as quiet as old Pussy when she is after a bird. ओके, मैं तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से राइडिंग करवाता हूँ. छोटे बच्चे हैं समझ के स्लो भी चलता हूँ. जब वह मेरी स्पीड पे बैठते हुए घबराते हुए मुझे अगर दिखते हैं तो मैं मेरी स्पीड कम कर देता हूँ. एंड आई गो एज स्मूथ एंड एज क्वाइट एज ओल्ड पुशी. मतलब वह कहता है कि मैं मेरी अगर स्पीड ज़्यादा हो गई है तो वह कम भी करता हूँ. जब वह डरते हुए दिखाई देते हैं, स्पीड इतनी कम करता हूँ कि जैसे एक ओल्ड पुशी, मतलब बूढ़ी बिल्ली जिस प्रकार से अपने सामने अगर कोई स्पैरो है या कोई दूसरा एनिमल है, अगर उसे पकड़ना है, उसकी शिकार करना है, तो वह किस तरह से अपने पाँव दबा के चोरों तले पैरों से चलती हुई हल्लू हल्लू धीमी से चलती है ना, इतना साइलेंट नहीं, उतनी स्पीड में बिल्कुल उस ओल्ड पुशी के जैसे स्पीड कम कर देता हूँ जब मुझे लगता है कि वह घबरा रही है पीठ के बेड पर. एंड व्हेन दे आर ऑल राइट, एंड जब मुझे लगता है कि अब वह ठीक है तो मैं फिर से आई गो ऑन अगेन फास्टर, तो फिर से मैं फास्ट हो जाता हूँ. यू सी जस्ट टू यूज देम टू ईट. यू सी जस्ट टू यूज देम टू ईट. एंड जैसे कि आप देखते हैं उनको ये इस प्रकार से मैं यूज़ करते हुए. सो डोंट यू ट्रबल योर सेल्फ प्रीचिंग टू मी. तो तुम्हें
उतनी फिक्र करने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड डोंट यू ट्रबल योर सेल्फ, तो अपने आप को इतनी मुसीबत में या संकट में मत घेरो, मत सोचो उनके बारे में कि बाबा मैं उन्हें परेशान कर रहा हूँ या ज़्यादा तकलीफ दे रहा हूँ। प्रीचिंग टू मी, तो मुझे इतनी सारी सलाह देने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं उनकी देखभाल कर सकता हूँ, उनका ख्याल रखता हूँ। इस प्रकार से मेरी लेग्स कहते हैं। आई एम द बेस्ट फ्रेंड एंड द बेस्ट राइडिंग मास्टर दोज चिल्ड्रन हैव, जो भी चिल्ड्रंस मेरे साथ खेलते हैं रहते हैं उनका मैं जो क्या हूँ, तो बेस्ट फ्रेंड हूँ एंड द बेस्ट राइडिंग मास्टर आल्सो, मैं उनका बेस्ट राइडिंग मास्टर भी बन के काम करता हूँ, बल्कि उन्हें टॉर्चर नहीं करूँगा, ऐसा मेरी लेग्स कहता है। सी लुक एट द पिक्चर, यह जो आप चित्र देख रहे हैं यहाँ पर, वह जेम्स मतलब मिस्टर ब्लूमफील्ड है, जो अपने बच्चों के साथ कभी कभार राइडिंग करवाने फील्ड पे चले जाते थे, लाइक ऑर्चर्ड। तो ऑर्चर्ड में घूमते समय यहाँ पर इस मेरी लेग्स पे, यह जो वाइट हॉर्स दिख रहा है आपको, यह एक मेरी लेग्स है। एंड इस मेरी लेग्स पे उनकी 2 गर्ल्स है, जिनके नाम है मिस जेसी एंड मिस फ्लोरा। ओके, यह जो छोटी 2 लड़कियां हैं यहाँ पे बैठ के राइडिंग कर रही है। एंड यह मेरी लेग्स उन्हें राइडिंग करवाने का काम कर रहा है। एंड मेरी लेग्स की देखभाल कौन करता है, उन्हें कौन संभालता है, तो वह ब्लूमफील्ड, मिस्टर ब्लूमफील्ड, जिसे हम पृष्ठ पुजारी या कादरी कहते हैं, वह उनके मिस जेसी एंड फ्लोरा के फादर है। नेक्स्ट, see, this is the one more image of Mary Legs. Okay, she is in the field or on field. And we have completed here half an story from this story. So students, we will take a remaining story in our next video or next class. Until we will take a short break. Okay, I hope till here you understood well of this story, and the remaining part of this story we will study in our next class. Till, thank you so much.